Good morning, students. Today we are going to learn the next part of the lesson fraction. In last lesson, we learned the meaning of fraction, the reading and writing of fraction. In this part, we are going to learn the mixed fraction. First of all, we will see a question. Three gawas have to be shared equally between two people. So what we have to do? We have to share three gawas equally between two people. So we can do this in two ways. So first of all, we are going to do with method number 1. So here are three gawas, 1, 2 and 3. तो यहाँ तीन अमरूद है, three gawas are there and we have to share these three gawas in between these two childs, one girl and a boy. So we have to share this equally between these two childs. So how could we share this? First of all, we make two equal part of each gawas. See, I made two equal parts of this gawa and also of this gawa and also of this gawa. So we have to make two equal parts of every gawa. Then I will take a half from each part. So I took half part from here, half part from here and also half part from here. So I took three half parts and I also gave three half parts to this child. So he also gets three half parts and she also gets three half parts. So what happened? So see, in this three gawas are there and we have shared this two half and three half to this girl and three half to this child. So what if we combine, or what if I add these two half gawas? So I will get one and a half gawa. What I will get? I will get one and a half gawa to this child and one and a half gawa to this child. So from this we learn that कि अगर दो हाफ को हम लोग ऐड करते हैं सो वी विल गेट अ वोल, यानी एक पूरा मिलता है एंड हाफ. तो हमको यहाँ कितना मिला? वन एंड अ हाफ. कितना मिला यहाँ पे? वन एंड अ हाफ. सो वी विल राइट दिस एज ए वन एंड हाफ. देखो हम लोग इसको वन एंड हाफ को फ्रैक्शन में लिखते समय, व्हेन वी राइट इट इनटू अ फ्रैक्शन वी राइट लाइक दिस, वन एंड अ हाफ. सो यहाँ पे भी सेम थिंग. सो वन हाफ प्लस हाफ दैट इज वन एंड दिस हाफ that is one and a half. So we will write as a one and a half. So these one and a half, these are mixed fractions. So fractions like these are called mixed fractions. अब second method, अब method number 2 कैसे करेंगे हम लोग? So how we will do? See, here are three gawas. So I will give each one gawa to each of them. See, I gave one gawa to this child and one gawa to this child, a whole gawa. Then I make two equal parts of third gawa and I gave that gawa to the child. So I get one and a half gawa to the girl and one and a half gawa to the boy. So a fraction like one and a half is called mixed fraction. So fractions which are written like this, वन एंड हाफ, दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शंस. तो हमको इस लेसन में और भी मिक्स फ्रैक्शन के अलग अलग टाइप देखने. तो पहला तरीके में हमने क्या किया, हर एक गवाह के तीन तीन हाफ पार्ट किए, फिर हाफ पार्ट तीनों इसको दिए, तीन हाफ पार्ट इसको दिए. सो देन आल्सो आई गॉट वन एंड हाफ. अभी मैंने क्या किया, एक वोल गवाह इसको दिया और एक वोल गवाह इसको, गवाह माने अमरूद, एक अमरूद इसको दिया और एक अमरूद इसको दिया. फिर ये जो तीसरा था इसके आधा इसको दिया और आधा इसको. सो ही गॉट वन एंड हाफ एंड शी आल्सो गॉट वन एंड हाफ. सो अ फ्रैक्शन लाइक वन एंड हाफ is called mixed fractions. So now we will see some more mixed fractions. So 1 and a quarter, 2 and a quarter and 3 and a quarter. So we have learned what is quarter. Quarter is a 1/4 part of a whole. If we make 4 equal part of anything, then one part is called a quarter. So this is 1 and this is quarter. So both
दीज मेक 1 एंड अ क्वार्टर। सो यहाँ पे ये देखो 1 प्लस क्वार्टर ये कितना हो जाता है 1 एंड अ क्वार्टर। तो इसको लिखते कैसे है, वी राइट इट एज ए 1 एंड अ क्वार्टर। सो 1 एंड ए क्वार्टर। व्हाट इफ आई टुक 2 वोल एंड अ क्वार्टर। यहाँ मैंने 2 पूरे लिए और एक क्वार्टर लिया। क्वार्टर माने द फोर्थ पार्ट ऑफ अ सॉरी 1 पार्ट ऑफ अ 4 इक्वल पार्ट्स। देन इसको 1/4 भी बोलते हैं, क्वार्टर भी बोलते हैं। सो दीज 1 + 1 2 एंड अ क्वार्टर। सो ये कितना हो गया 2 प्लस क्वार्टर दैट इज 2 एंड अ क्वार्टर। सो हाउ टू राइट दिस 2 एंड अ quarter. What if I took 3 equal and a quarter? Yes, of course, these are 3 plus quarter, that is 3 and a quarter. So 3 and a quarter. If I took 4, then it is 4 and a quarter. Next is 1 and a half, 2 and a half, and a 3 and a half. So what is this? This is a whole and this is half. So this is 1 and a half. So I got 1 plus half, that is 1 and a half. So ये हो गया 1 and a half। लिखेंगे कैसे इसको? So we will write like this 1 and a half. If I took 2 and a half, then I will write 2 and a half and I will write as a 2 and a half. So ये हो गया 2, 1 plus 1 2 और ये half, तो ये हो गया 2 and a half. So if I took 3, then it is 3 and a half. So इसको लिखेंगे 3 and a half. So we will write like this 3 and a half. So next fraction is 1 and a 3 quarter. 1 and a 3 quarter. So see, this is a whole 1 and this is 3 quarter. हमने पिछले fractions के parts में देखा था what is a quarter and a half and a 3 quarter. So this is 3 quarter. I took 3 parts out of 4 equal parts. So it is 3 quarter. सो 1 प्लस 3 क्वार्टर, 3 क्वार्टर को कैसा लिखते हैं हम लोग 3/4। सो 1 एंड अ 3 क्वार्टर। अब अगर मैं 2 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2 एंड अ 3 क्वार्टर। देन इफ आई टुक 3 देन इट विल बी लाइक दिस 3 एंड अ 3 क्वार्टर। सो इस प्रकार से हमको इन फ्रैक्शंस को, इन मिक्स फ्रैक्शंस को, देखो ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है एंड दिस इज आल्सो अ मिक्स फ्रैक्शन। सो दिस इज अ मिक्स फ्रैक्शन 3 एंड अ 3 क्वार्टर। इसको पढ़ते इस प्रकार से है और लिखते इस प्रकार से है। देन वी विल सी exercise on the basis of these questions. So read the following fractions and write them in words. आपको क्या करना है, इनको पढ़ना है और उसको वर्ड्स में लिखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा फ्रैक्शंस है। यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं, देखो 2 एंड 3 क्वार्टर। देखो ये है 2 और ये है 3 क्वार्टर, तो इसको लिखेंगे कैसे 2 एंड 3 क्वार्टर। देन नेक्स्ट 3 एंड क्वार्टर, ये कितना है 3 एंड क्वार्टर, सिंगल है 1/4 है, सो दैट इज क्वार्टर। तो सो ये हो गया 3 एंड क्वार्टर। देन 11 एंड हाफ, सो ये है 11 एंड हाफ। नेक्स्ट इज 5 एंड 3 क्वार्टर, 5 एंड 3 क्वार्टर। देन आई गॉट 9 एंड हाफ। देन आई गॉट 8 एंड क्वार्टर, 8 एंड क्वार्टर। सो लाइक दिस आई राइट देम इन वर्ड्स। सो मैंने इसको सबसे पहले आई रीड दिस फ्रैक्शंस देन आई रोट इन टू द वर्ड्स। नेक्स्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट द फ्रैक्शंस। तो ये यहाँ पे हमको वर्ड्स में दिया है, इसको हमें पढ़ना है। वी हैव टू रीड दिस एंड देन राइट इन टू द नंबर्स। सो 4 एंड 3 क्वार्टर्स। तो 4 एंड 3 क्वार्टर्स कैसे लिखेंगे? सो सबसे पहले ये हो गया 4 बराबर, और 4 और ये 3 क्वार्टर, सो 4 एंड 3 क्वार्टर्स। देन 7 एंड 1 क्वार्टर। सो 1 क्वार्टर बोला है तो 7 तो पूरा लिखना है हमको एंड वी गॉट अ क्वार्टर। देन 10 एंड हाफ, सो आई गॉट 10 एंड दिस इज हाफ, सो 10 एंड हाफ। 18 एंड हाफ कैसे लिखेंगे? 18 बराबर और हाफ यानी 1/2, 18 and 1/2. So 14 and 3 quarters. So this is 14 and this is 3 quarter, 3/4. 3/4 is 3 quarter.
देन 9 एंड 1/4 मीन्स 9 को लिखना है, उसके सामने हमें 1/4 यानी 1/4 लिखना है. देन 7.5. सो वी हैव टू राइट लाइक दिस 7.5. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयरिंग फ्रैक्शन. नाउ एक्सरसाइज हैज बीन कंप्लीटेड. अभी हम लोग देखेंगे कंपेयरिंग फ्रैक्शंस. सबसे पहले फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं. कंपेयर करना माने तुलना करना. सी, अब यहाँ पे कोई एक चीज़ है जिसके मैंने 2 इक्वल पार्ट्स किए. इफ़ आई शेडेड 1 पार्ट सो आई गॉट 1/2. अब इसके 3 इक्वल पार्ट किए. अब इसमें भी ये एक पार्ट शेडेड किया तो ये कितना हो गया 1/3. अब इसके 4 इक्वल पार्ट्स किए, इसमें एक पार्ट शेडेड किया सो आई गॉट 1/4. अब इसके 5 पार्ट्स किए एंड आई शेडेड 1 पार्ट सो आई गॉट 1/5 एंड एट लास्ट इट इज़ 1/6. सो देखो हर एक में हमने अलग अलग पार्ट किए. एक ही समान वस्तुएं है ये, एक ही समान इनकी लंबाई और चौड़ाई है. उसमें से हमने पहले वाले को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसके लिए हमने डिनोमिनेटर में 2 लिया, 2 में से एक पार्ट शेडेड किया, इसके लिए 1. अब 3 पार्ट किए, 3 में से एक शेडेड किया तो 1/3. दिस इज 1/4, दिस इज 1/5, दिस इज 1/6. सो विच इज बिगर वन. यहाँ पे देखो सबसे बड़ा कौन सा है, 1/2 बड़ा है. सो the bigger fraction is 1/2 and the smaller fraction is 1/6. So on this basis we have to solve some questions. So first of all इन questions को ध्यान से पढ़ेंगे. Comparing fractions, we got this and answer the following question. हमको क्या करना है, ये क्वेश्चन के आंसर देना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज which is the smaller fraction. अब ये हमको यहाँ जानकारी के लिए ये फ्रैक्शंस भी दिए हैं. विच इज़ द स्मॉलर फ्रैक्शन 1/2 और 1/3. अब ये दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करो. देखो 1/2 इज बिगर, सो विच इज स्मॉलर 1/3 इज स्मॉलर. सो 1/3 इज स्मॉलर फ्रैक्शन. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, विच इज द स्मॉलर फ्रैक्शन 1/5 और 1/6. यस, वेरी ट्रू, दिस इज 1/6. Then we got next question, which is the bigger fraction. Now we have to see the bigger fraction 1/3 or 1/5. See, this is 1/5 and this is 1/3. Which is bigger? Yes, very good. This is 1/3 is bigger fraction. So we got the answer 1/3. Next question is write the bigger than or smaller than in the boxes. In the given in the boxes given below. तो यहाँ दो साइंस दिए हैं, तो जिसकी तरफ इसका मुंह होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है. सो देखो 1/3 इज स्मॉलर देन 1/2. वी हैव सीन हियर कि 1/2 ये बड़ा है, सो 1/3 इज स्मॉलर देन 1/2. देन 1/3 इज बिगर देन 1/4. तो ये बिगर देन का साइन है, ये स्मॉलर देन का साइन है. अब इनमें देखो 1/5 इज स्मॉलर देन 1/3. सो लाइक दिस वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. तो देखो यहाँ पे 1/2 इज बिगर देन 1/3, 1/2 इज बिगर देन 1/3, देन 1/3 इज बिगर देन 1/4, 1/4 इज बिगर देन 1/5, and 1/5 इज बिगर देन 1/6. सो लाइक दिस वी हैव टू सॉल्व. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम हमको है, उस पर क्वेश्चन हमको दिए हैं. As the denominator of the fraction with numerator keeps increasing, what happens to the value of fractions? अभी यहाँ पे हमने देखा, देखो सबका numerator 1 है and denominator get increasing, so what happens to the fractions? तो हमने यहाँ क्या देखा कि अगर numerator same है और denominator बढ़ते जा रहा है, so the value of the fractions keeps on decreasing. तो इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो गई, देखो यहाँ ज़्यादा थी, यहाँ उससे कम हो गई, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम. सो द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. एज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन विद अ न्यूमरेटर 1 कीप्स इंक्रीजिंग, द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन कीप्स डिक्रीजिंग. मतलब अगर न्यूमरेटर इक्वल है और डिनोमिनेटर अगर बढ़ते जा रहा है, सो द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन विल बी डिक्रीजिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द स्मॉलर फ्रैक्शन 1/6 और 1/9. तो हमने अभी देखा था कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, अगर दोनों न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो स्मॉलर होता है. सो 1/9 इज स्मॉलर. वाई? सो इसका आंसर हमको देना है. सी, 1/9 इज ए स्मॉलर फ्रैक्शन एज
हमने अभी पढ़ा था द न्यूमरेटर आर इक्वल्स, देखो यहाँ पे न्यूमरेटर आर इक्वल 1 and 1, सो द डिनोमिनेटर हैविंग बिगर नंबर, अब बिगर नंबर किसका है 9, इज ऑलवेज स्मॉलर फ्रैक्शन। तो जिसका न्यूमरेटर अगर इक्वल है दोनों, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है दैट इज स्मॉलर फ्रैक्शन। सो वी गॉट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लॉक्स बॉक्सेस गिवन बिलो विद द प्रॉपर साइंस। सो दिस इज इक्वल टू का साइन है, ये स्मॉलर देन का है और ये बिगर देन का है। सो वी गॉट द आंसर्स। 1/8 इज बिगर देन 1/10, 1/5 इज स्मॉलर देन 1/3, 1/4 इज स्मॉलर देन 1/2। सी 1/3 इज इक्वल टू 1/3, 1/15 इज बिगर देन 1/20 and 1/20 is smaller than 1/15, 1/200 is smaller than 1/100। तो अभी हमने देखा था कि जिसका न्यूमरेटर सेम होता है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन हमेशा बड़ा होता है, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन हमेशा छोटा होता है। सो लाइक दिस वी हैव टू पुट द प्रॉपर साइंस। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रैक्शंस एंड थैंक यू।